आज का प्रवचन अपन ध्यान पर करते हैं। वैसे तो ध्यान पर बहुत बोला गया है, बहुत बोलते हैं, किंतु समझना बहुत कठिन है। समझ में आने की बात है ही नहीं, बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। ध्यान हो जाए उस दिन ध्यान समझ में आता। जिस दिन आपका ध्यान हो गया, ये ध्यान करते हो, ये ध्यान नहीं है। ध्यान का होना अलग बात है। वो ध्यान क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ध्यान है, इसके बारे में कबीरदास जी ने एक भजन में बढ़िया कहा। और भजन की एक लाइन है, जागृत रहना रे नगर में चोर आएंगे। जागृत रहना रे नगर में चोर आएंगे। बड़ा मुश्किल है। नगर क्या? ये शरीर है हमारा, ये नगर है। इसका कहा हमने कि इसमें चोर आ रहे हैं प्रतिपल। तो जागृत रहो तो चोर रुक जाते हैं, आना बंद कर देते हैं। उस जागृति का नाम ध्यान है। और मैंने पढ़ा नहीं, देखा है। और रोज देखता हूँ, दिन भर देखता हूँ। मैं भी जितनी देर जागृति कम हो जाती है उतनी देर चोर घुसने के चांसेस हैं। घुसते भी है छोटे मोटे। मैं ये नहीं कहता कि मेरे अंदर चोर नहीं आते। चोर हैं क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये विकार। यूं कहें, मन के विकार चोर हैं। हमारी चोरी करके हमारी सबसे बड़ी दौलत क्या है? शांति, आनंद, आत्मा। आत्मा को नीचे गिराने वाले ये 5 दुश्मन, ये 5 चोर हैं। और ये केवल जागृत से रुक सकते हैं। जागृत ध्यान है। आप जब ध्यान करते हैं, ये ध्यान नहीं, फिर ध्यान होने लग जाए, यानी आपकी आत्मा जागृत हो जाए। आप खुद है आत्मा, वो देखने लग जाए और ऐसी जागृत रहे, अलर्ट, एकदम अवेयर कि कोई चोर घुस तो नहीं रहा। देखे, और वो देखना कंप्लीट हो जाता है। जितनी देर कंप्लीट रहता है, जितनी देर जागृति रहती है, उतनी देर चोर नहीं घुसता अंदर। चोर है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। देखिए, आपके अंदर कोई न कोई इन 5 में से एक का विचार रहता ही है, और उसके साथ आप भी चलते हैं। काम उठ रहा है यानी चाहिए, कभी वो, कभी क्रोध आ गया, वो लोभ, कहाँ मिलेगा पैसा, कैसे मिलेगा धन, वो मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, मेरे परिवार को कुछ नहीं हो जाए, मेरे भाई को कुछ नहीं हो जाए, मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए, इसका नुकसान ना हो जाए, ये मोह। और मेरे को कुछ ना हो जाए, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मैं, ये अहंकार।
اب 24 گھنٹے آپ کے اندر لگاتار وچار رہتے کہ نہیں؟ اور وہ وچار ان پانچوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز کے رہتے ہی ہیں۔ یدی یہ وچار نہ ہو، یدی یہ 5 چور میں سے کوئی چور آپ کے اندر نہ ہو، اس سمے کوئی وچار نہیں رہے گا۔ جتنی دیر وچار نہیں رہے گا اتنی دیر وہ جاگرت ہے۔ آپ جاگ گئے، ہوش میں ہیں، اس کو کہتے ہیں ہوش۔ تو اس کے بارے میں اس بھجن میں کہا کہ ایسے جاگرت رہو سدا، جاگرت رہنا رے نگر میں چور آئیں گے، نگر میں چور نہ گھس جائے۔ کیونکہ چور کیوں کہا ہے ان کو؟ یہ ہماری جو شانتی روپی آنند روپی دولت ہے اس کو یہ لوٹ رہے ہیں، یہ پانچوں چور اس کی چوری کرتے ہیں، اور یہ سدا رہتے اور کنٹینیوس رہتے، لگاتار ہمارے اندر رہتے۔ بتائیے آپ کتنی دولت چرا کے لے گئے، اور سب کی 90 برس کے ہو گئے، 100 برس کے ہوں گے تب بھی، اور 1 برس کے ہوئے تب بھی چلتا ہی رہتا ہے۔ اب یہ دھیان کی ودھی میں جاتے ہیں، دھیان کی سادھنا کرتے ہیں آپ، تو دھیرے 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 جاگرتی بڑھنے لگتی ہے، اور جیسے جیسے جاگرتی بڑھتی ہے ویسے ویسے یہ وچار، یہ پانچوں چور روپی وچار آپ کے اندر جانے سے رکنے لگتے ہیں۔ ایک سمے ایسا آتا ہے کہ جاگرتی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی کوئی چور نہیں گھسا، ابھی کوئی چور نہیں گھسا، ابھی کوئی چور نہیں گھسا، اور ایسا دیکھتے دیکھتے ہی جاگرتی اپنے آپ لٹک جاتی، کم ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی کم ہوئی ویسے ہی چور گھسا۔ یہ دھیانیوں کی حالت ہے، جن کا دھیان بالکل نہیں ہے، دھیان کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، ان کے اندر تو 24 گھنٹہ بے دھڑک چل رہے ہیں چور، اور ویسے سب ہے۔ کوئی برلا ہزاروں میں ایک آدھ کے کم ہونے لگتے ہیں جو سالوں سے دھیان کی پرکریا سے گزر رہے ہیں، دھیان کی سادھنا کر رہے ہیں، ان کے رکنے لگتے ہیں چور، اور رکے ہیں تو دکھتا بھی ہے پھر، اور دکھتے میں بھی پہلی بات تو ہزاروں میں سے، کروڑوں لاکھوں میں سے ایک کو ہوتا ہے، کسی ایک دو کو تھوڑا تھوڑا ہونے لگتا۔ وہ بہت بہت مشکل ہے کہ سدا کے لیے جتنا چاہیں اتنی دیر روکے رکھیں، اتنی دیر جاگرت رہنے کی ضرورت ہے۔ ان کو روکنے کی ضرورت نہیں، ان کو روکنے سے یہ رکیں گے بھی نہیں، کسی کے باپ سے نہیں رکے، اتنے بڑے چور ہیں، کنتو جاگرتی بڑھانے، اس کو دھیان دیجیے گا۔ آپ سوچو کہ اب میں ان چوروں کو گھسنے سے روک دوں گا تو سمبھو نہیں ہے آپ سے روکنا۔ پھر آپ ایک کام کر سکتے ہیں ان کو روکنے کے لیے، اپنی جاگرتی بڑھا سکتے ہیں۔ وہ جو کہا نا جاگرت رہنا رے نگر میں چور آئیں گے، چور کو روکنا مت، کیونکہ چور تمہارے باپ سے نہیں روکے، اتنے طاقتور ہے۔ تم تو ایک کام کر سکتے ہو کہ اپنی جاگرتی بڑھا سکتے ہو، اور جاگرتی بڑھتی ہے دھیان سے۔ دھیان بڑھے تو جاگرتی بڑھے، اور ہوش بڑھے، جاگرتی بڑھے تو چور رک جاتے، پھر نہیں جاتے اندر، گھسنے نہیں دیتے وہ۔
यूं कहें कि चौकीदार डंडा लेके बैठा और जागृत अवस्था में बैठा है, जरा सा ढीला पड़ा कि घुसे चोर, और आप 24 घंटे ढीले पड़े। 24 घंटे अंदर चोर किलोले मार रहे हैं, खूब घूम रहे हैं, एक के बाद एक, कभी काम का, कभी क्रोध का, कभी लोभ का, कभी मोह का और अहंकार का, सदा पांचों घुसे हुए हैं। ये पता ही नहीं लगता कि कौन सा कितनी देर रहा, पांचों ही। कोई थोड़ा ऊपर आ जाता, कोई थोड़ा नीचे चला जाता, कोई थोड़ा ऊपर आ जाता, कोई थोड़ा नीचे चला जाता। जो ऊपर आ जाता है उसको सोचते हो कि अभी हमारे अंदर क्रोध उठा है, अभी काम उठा है, अभी लोभ उठा है। सोचिए, आपने देखा है और देख रहे हो, सदा लगातार देख रहे हो, हैं? 24 घंटे पैसा कब मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे रोके खर्च ना हो जाए, कोई उठा नहीं ले जाए, चोर नहीं ले जाए। चल रहा है कि नहीं? लोभ। मैं देखता हूँ, आप लोग मेरे पास आते हैं, मैं आपके अंदर का भी देख लेता हूँ। मेरे अंदर का तो देखता ही हूँ, मैं आपके अंदर का भी देखता हूँ, किस आदमी के अंदर कितना चल रहा है, लोभ कितना चल रहा है, मोह कितना चल रहा है, क्रोध कितना चल रहा है, काम कितना आ रहा है। काम यानी काम वासना ही नहीं, फिर प्रत्येक प्रकार की इच्छा, किसी भी प्रकार की इच्छा काम है, और वो चलती रहती है सदा। अब मैं देखता हूँ, यहाँ तक देखने लग गया, अब मैं नाम नहीं बताता। कल ही मैं एक सुख का सोच रहा था कि मैंने यार इस आदमी के अंदर काम क्रोध लोभ मोह दिखता नहीं है, क्योंकि जितना मेरे पास आप रहते हैं, जितना सानिध्य में रहते हैं, उतना दिखता है। अब सानिध्य में भी हो और दिखे नहीं, क्या कहना चाहिए, है ही नहीं विचार में, हैं? और मैं देखता हूँ कि जो जितना आता है, जितना रहता है, अपने आप कम होता है, बहुत कम है। क्या? जो लोग ज़्यादा आते हैं उनमें बहुत कम है ये, और दिखता है यार इसमें इतना सानिध्य है, हाँ, कम हो गया इसमें। और जो बिल्कुल कम आते हैं या ताजे ताजे आते हैं, बाप रे बाप, भयंकर दूर से दिखता है, सूरत पे दिखता है, आपके चेहरे पे लिखा जाता है, आपके भीतर जो चल रहा है। कहते हैं ना, ज्ञानी सूरत भी पढ़ लेता, आपके सूरत पे क्या है ये भी पढ़ लेता है ज्ञानी। क्या पढ़ लेता है? इन पांचों चोरों को, क्योंकि अब उसके अंदर है नहीं, है नहीं तो जैसे ही आना लगता है अपने अंदर भी घुसने लगता, देख लेता, और जैसे ही देखा वो भगा। अब ये 24 घंटे का खेल चलता रहता है उसके अंदर भी, तो पहचानने खूब अच्छे से लगता है, और जब खूब अच्छे से पहचानने लग गया तो अब अपनी तो ठीक है, दूसरों की भी पहचानने लग गया। आप बात करते हो, बैठते हो, आपके हाव भाव, चेहरे के, आपके चेहरे के ऊपर जो एक्सप्रेशंस आते हैं, है, उस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है। अब सोचिए आप, कितनी बड़ी शक्ति है आपके पास। मेरे को नहीं मालूम इन बातों की, कहीं पढ़ा भी नहीं, कहीं सुना भी नहीं, मगर अब देख रहा हूँ। आदमी सामने आता है, मैं पहचान जाता हूँ इसके अंदर कौन सा भी चल रहा है। कहते हैं ना, आदमी मन की बात पहचान लेता, ज्ञानी आपके अंदर कौन सा विचार चल रहा है ये भी आदमी ज्ञानी समझ लेता है, किस समय कौन सा विचार कर रहा हो। क्योंकि
जो आपके अंदर जितना गहरा विषय होता है वो चोर, वैसे चेहरे के एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव बता देते हैं। और आपको भी बताते हैं, मोटे मोटे आपको भी बताते हैं। अभी आपका ध्यान नहीं है इसलिए छोटे मोटे नहीं आते। हमारा थोड़ा सा ज्ञान होने लगा, ध्यान होने लगा, इसलिए हम छोटे वाला भी, छोटा हाव भाव भी आपके चेहरे पर पढ़ लेते हैं कि काम चल रहा है इसके अंदर, कि क्रोध चल रहा है। अब देखो ना, आपको भी कोई आदमी गुस्से में दिख रहा है तो दिखता है कि नहीं? गुस्से में नहीं है, खुश है तो दिखता है कि नहीं? ये बड़े चोर हैं। अब छोटे चोर काम है, वासनाएं, लोभ, चाहिए, धन, पैसा, मोह, परिवार, बेटे बेटी, मर जा रहे हूँ, बाप रे हमारा बेटा तो ऐसा, हमारा तो ऐसा, हमारा तो फला, कुछ नहीं है भाई। हो सकता है वो तेरा दुश्मन है, मौका है जान ले लेगा तेरी। बेटे भी बाप का कत्ल कर देते कि नहीं? भाई भाई का कत्ल कर रहे हैं, केस लड़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, वो मोह है, वो भी चोर है। और अहंकार, अहंकार है आदमी को देखना आप चेहरा कैसा दिखता है। तो ये जैसे जैसे ध्यान गहराने लगता है वैसे वैसे हमारे समझ में आने लग जाती बात, यानी उसके भीतर क्या चल रहा है, कौन सा विकार, पांचों चोर में से कौन सा चोर चल रहा है, ये उसका चेहरा बता देता है। अब क्या है कि अभी तो आपका बड़ी बड़ी चीज, क्योंकि ध्यान है ही नहीं, जरा सा भी नहीं है, तो भी कहते ना कि पता नहीं क्यों मेरे सामने आता तो मुंह फुलाए फुलाए आता है। इसके चेहरे पर कभी खुशी देखी नहीं है। क्यों? कि वो है ही वो। आपको देख के काम उठ जाता है, आपको देख के क्रोध उठ जाता है। क्रोध उठ जाएगा तो उसका वैसा चेहरा दिखने लगेगा। आपको क्या लगता है कि इसका चेहरा है ही ऐसा क्या है? मैं जब देखता हूँ तब मुंह चढ़ा का चढ़ा ही रहता। मुंह चढ़ा है ना, क्रोध आ रहा। तो ये सब अभी बहुत मोटा मोटा दिखता है, क्योंकि ध्यान है ही नहीं। फिर भी ये तब तेज होता है। हाँ, देखे ना आप, अब गुस्से में है आदमी तो तमतमाने लगता है। यहाँ तक कि मौका है, बहुत गुस्सा है तो कांपने भी लगता, फड़फड़ाने लगता। अभी इतना तक नहीं दिखता क्या? जितना ज्यादा हो गया उतना ज्यादा दिखेगा। अब आपका ध्यान बहुत ज्यादा है तो थोड़ा सा गुस्सा भी आया है तो दिख जाएगा, करेगा इसके दिल में कुछ आ गया है। अब सोचिए आप कि अब मन में कोई विचार भी आया, विचार से तो आते हैं सारे चोर, सारे विकार विचार रूप में आते हैं। और विचार जितना सघन तक रूप में होगा वो उतना बड़ा होगा, उतना एक्सप्रेशन अपने चेहरे के हाव भाव, अपने शरीर के हाव भाव, और यहाँ तक कि अपनी गतिविधि भी दिखने लगती। क्रोध में आदमी कैसे चलता है देखिए है। प्रेम हो जाए किसी से आपका तो चाल बदल जाती है। देखना कभी आप, वो चाल कुछ अलग ढंग की आती है। शरीर के हाव भाव बदल गए हैं। क्रोध में वैसे तरह की चाल चलते हैं और काम में वैसी चाल चलते हैं। तो हाव भाव आपके अंदर के समान होता है। अब सोचिए आप कि किसी भी प्रकार का भाव
अंदर चोर नहीं घुसने देते। चोर नहीं घुसने दे, कौन सा ध्यान होता हो? कभी भी कुछ भी विचार अंदर आने न दे कोई आदमी, किसी भी तरह का। इन पांचों में से किसी तरह का भी कोई विचार ना आए। और छठवें तरह का कोई विचार होता ही नहीं। देखिए, होते हैं तो केवल ये 5 प्रकार के ही होते हैं, क्योंकि ये 5 ही चोर हैं। छठवें प्रकार का कोई होता ही नहीं। या तो आएगा तो इनमें से किसी में का एक आएगा, और एक भी नहीं, सभी रहते हैं अंदर, है बारी बारी से ऊपर नीचे होता रहता है। तो यदि ये पांचों चोर नहीं है, उस समय आप जागृत हैं। और जागृत के विपरीत निद्रा होती है, नींद। यानी आप या तो जगे हुए रहते हैं या आप सोए हुए हैं। देखिए, आपको लगता है हम कहाँ सोए हैं, हम तो आपके प्रवचन सुन रहे हैं अभी। तो सोए थोड़ी है, सोए ही हो भैया। प्रवचन भी सुन थोड़ी रहे हो पूरे, हमको पता है। रोज सुनो तो भी सुनते तो हो ही नहीं। क्यों? कि भीतर तो उन चोर में से कोई एक रहता ही है तुम्हारे अंदर, वो चल ही रहा है। तो सुनोगे कब? है वो जितनी देर चले उतनी देर हमारी निद्रा है। एक भजन और कबीर ने कहा है, जागृत वो कहा हमने कि सोए सोए जी रहा आदमी, पहले सोया माता के गर्भ में। है वहाँ भी हम सोए थे, मर गए थे क्या? नहीं, जिंदा थे। फिर मगर होश कुछ भी नहीं था होश। है पैदा हो गए तो फिर भी कहाँ होश, बड़े हो गए तो फिर भी कहाँ होश। होश वही जागृति, होश कहते हैं जागृति को। और जागृत आ जाए, हो जाए, जागृत रहें, तो फिर ये पांचों में दुश्मन में से, चोर में से कोई रहना चाहिए क्या अंदर? नहीं। हम होश में हैं तो चोर घुसेंगे क्या? वो जो होश है उसको जागना कहते हैं, वो है जागृति। और वो यदि नहीं है तो हम अभी भी सोए सोए जी रहे हैं। तो भजन में, उस भजन में, एक भजन में गाया है, 5-6 चरण है उसके, और उसमें हर एक उम्र का दिया कि बचपन में सोया माता के गर्भ में, पहले सोया माता के गर्भ में, ऊंधा मुख तो झूला, ऊंधा मुख झूल रहे थे। हैं फिर वहाँ प्रार्थना करी होगी भगवान से, गए भगवान इस नरक से निकाल। अब निकले तो फिर भूल गए, खाने पीने में लग गए, रोने गाने में लग गए। ऐसा है वो भजन है। फिर भगवान को भूल गए, नहीं वो जागृति को भूल गए हैं। वो बचपन से लगा के अभी तक काय में न काय में उलझे हुए हैं। कभी पत्नी में उलझ गए, कभी प्रेम में उलझ गए, कभी कमाने में उलझ गए, कभी किसी चीज में उलझे उलझे पूरी जिंदगी। आखिरी दम तक उसमें कहते भजन में, आखिरी सोना शमशान का सोना। वहां भी सोए सोए गए, मर गए, अभी भी जागृति नहीं आई। वो जागृति जिसको आ जाए जीवन में कभी भी, उसको मोक्ष मिल जाता है, उसको फिर नहीं आना पड़ता। जिसको वो जागृति मिल जाए, जिसने देख लिया, जिसके ये चोर, पांचों चोर घुसने नहीं देता। अब मौत आएगी तो मौत को भी देखेगा। मैं देखता हूँ, ध्यान करने बैठता हूँ, देखना आप कभी जब आपका ध्यान गहराएगा तो ये 2 चीज़ों में से एक चीज़ अटैक करती रहती है, वो ध्यान पे।
दो कौन सी? एक तो नींद और एक ये चोर है। या तो इन पांचों में से कोई न कोई आप पे अटैक करता फटाफट, कि अब काम का विचार आ गया, अब क्रोध का विचार आ गया, अब लोभ का विचार आ गया, अब मोह का विचार है, अब अहंकार है। और ये सब जैसे ही ऐसा लगे कि ये बेहोश हो जाए, ये चोर बेहोश हो जाते हैं, उस समय नींद काटे 1 सेकंड में, ऐसे झप से आती है, और झप से जैसे ही आती है उसमें बह जाते हैं। अब ये पांचों ऐसा लगता है कि ये नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनके प्रति हम सो गए हैं। तो हमको वो फिर भी नींद में, ध्यान में वो नींद आ जाती है ना, तो लोगों को लगता है कि बड़ा बड़ा अच्छा ध्यान लगा मेरा, तो क्योंकि उस समय ये पांचों रुकते हुए दिखते हैं, और रुकते नहीं हैं, आते जब भी हैं, विचार जब भी आ रहे हैं, किंतु अब विचार जागृत मन के नहीं आ रहे हैं, अब सीधा सीधा नहीं दिख रहा, अब इनडायरेक्ट दिख रहा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो हम जागृत से अचेत हो गए, अचेत हो गए तो निद्रा, तो या तो निद्रा का अटैक आता है ध्यान में, या फिर पांचों का अटैक आता है, और ये अटैक चलते रहता है। जागृत हो जाए आप, होश में आ जाए आप। गौतम बुद्ध ने कहा है कि होश पूर्वक जीना ही ज्ञान है। वो कई बार जैसे कहीं जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो वापस पलट के आते हैं और फिर उतना चलते हैं। किसी ने पूछा कि ये क्या करते हो आप, वापस पलट के आए और फिर गए? बोले ऐसा है कि मैं ध्यानपूर्वक नहीं 2-4 कदम रखे है मैंने, ध्यान में नहीं था उस समय है। आप सारे काम, भोजन भी सोते सोते करते हैं, निद्रा में चल भी रहे, निद्रा में, क्योंकि विचार चल ही रहे हैं वो पांचों के। हाँ, तो आपके चलने का ध्यान थोड़ी है, आपको खाने का ध्यान थोड़ी है, आपको बोलने का ध्यान थोड़ी है। सोए सोए कर रहे हो, वो भी ध्यान पूर्वक होता है ध्यानी का। जरा सा पता लग जाए कि अरे यार बिना ध्यान पूर्वक हो गया है, तो पता लगने लगता है कि अंदर ये विचार आया, अब ये विचार आया, ये रुक रहा था इतनी देर, फटाक से जहाँ मेरे को गफलत हुई जागृति के, की विचार आ जाता है। या तो विचार आ जाएगा या नींद आ जाएगी। तो विचार आते भी दिखते हैं, वैसे ही नींद आते भी दिखती है। अभी आपने कभी नींद आते नहीं देखी होगी, कभी देखोगे भी नहीं जिंदगी भर। 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, किंतु नींद कब आ गई, कैसे आई थी पता है? नींद कैसे खुली, कब खुली पता है? किसी को नहीं पता, क्योंकि देखा ही नहीं कभी। उसके पहले बेहोश आती। ऐसे ही मौत भी, मौत आएगी तो पता थोड़ा लगेगा कि आई, ज्ञानी को पता होता कि ये आई। देखो जिस तरह से अभी वो नींद को देखता है कि आई, वैसे ही वो मौत को देखता है कि ये आई है। तो हमारी जागृति, हमारा होश, हमारा अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हम उस होश को देखने आए हैं, असल में होश से जीने आए हैं, हम निद्रा में जीने नहीं आए हैं। और हम जिंदगी भर निद्रा में जी के जाते हैं। इसलिए हो सके तो आप इसी जीवन में निद्रा को भगा दीजिए, जागृत हो जाइए, और देखते रहिए कि आपके अंदर वो चोर घुसे ना, आपके अंदर वो चोर ना आए। ठीक है, आज इतना ही। Você é formado, né?